یہ ہے ایک خونی داستان جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آدم خور درندے جو انسان کے گوشت کے پیاسے ہیں، اور ایک شکاری جو اپنی جان پر کھیل کر ان درندوں سے ٹکراتا ہے۔ پیش ہے آدم خوروں کی وادی۔ کیا تمہیں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی ہے؟ میں نے منہ اٹھا کر زور کا سانس کھینچا۔ واقعی سڑے ہوئے گوشت کی ناقابل برداشت بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مگرمچھ کا ٹھکانہ کہیں قریب ہی ہے۔ اب ہم مزید احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ سورج عین ہمارے سروں پر چمک رہا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ مگرمچھ ضرور اس وقت اپنے ٹھکانے پر آرام کر رہا ہوگا۔ عموماً مگرمچھ سورج طلوع یا غروب ہوتے وقت نکلا کرتے ہیں اور اسی وقت شکار مارتے ہیں۔ باقی وقت وہ ریت کے بستر پر قیلولہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ اس مگرمچھ میں بھی یہ عادت تھی۔ ویسے بھی اوپر کی گھڑیوں میں مگرمچھ کے قومی مزمحل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ گہری دلدل اور کیچڑ سے گزرتے ہوئے، جہاں قدم قدم پر خضرو پودے اور جمی ہوئی گھاس ہمارا راستہ روک رہی تھی، اس سے برسرے بیکار ہو کر آخر کار ہم نے اس کا ٹھکانہ تلاش کر ہی لیا۔ قریباً یہ 10 فٹ چوڑا اور 15 سے 18 فٹ لمبا ایک نشیبی گڑھا تھا، جس میں خشک پودے، جھاڑیاں، گھاس پھوس، سیاہ کیچڑ، مرے ہوئے جانوروں اور پرندوں کی ہڈیوں کے علاوہ سڑا ہوا گوشت بھی جمع تھا، اور اس میں سے شدید ناگوار اور ناقابل برداشت بو اٹھ رہی تھی، جس نے اطراف کی ساری فضا کو خراب بنایا ہوا تھا۔ ہم نے رومال ناک پر باندھے اور آگے بڑھے۔ اس گڑھے سے ندی کا کنارہ آدھے فرلانگ کی مسافت پر محیط تھا، جہاں ہر اقسام کے آبی پرندے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے نور دین کو مخصوص اشارہ دیا۔ ہم نے اپنی بندوقیں تانی اور اچھی طرح گڑھے کا جائزہ لیا، مگر گندگی کے انبار میں ہمیں مگرمچھ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ ایک طرف سڑی ہوئی مچھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نور دین نے اسے بھی اچھی طرح دیکھا، لیکن وہ کہیں اور قیام پذیر تھا۔ نور دین نے کہا کیا کریں؟ تلاش جاری رکھیں یا واپس چلیں؟ مگرمچھ کا ٹھکانہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، اب وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہم کل صبح یہاں آئیں گے، ابھی واپس چلتے ہیں۔ میں نے واپسی کی طرف قدم موڑ دیے۔ جب ہم کشتی کے پاس پہنچے تو دونوں آدمی غائب تھے، البتہ کشتی موجود تھی۔ یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ نور دین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کہاں مر گئے۔ میں نے کچھ دیر کے بعد انہیں آوازیں دیں تو ساتھ والے درخت سے ایک کی آواز آئی، صاحب ہم یہاں ہیں۔ میں نے انہیں فوراً نیچے آنے کو کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے درخت سے اتر آئے اور بولے، صاحب ہم نے ابھی ایک بڑے مگرمچھ کو دیکھا ہے، وہ سامنے والی گھاس میں چھپا ہے۔ ہمیں یقین ہے یہ وہی آدم خور ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، ہم سے چند قدموں کے فاصلے پر لمبی لمبی جنگلی گھاس میں سے وہی مگرمچھ نکلا اور تیزی سے پانی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چیلا کر نور دین کو گولی چلانے کا کہا اور خود بھی اس پر فائر داغ دیا، لیکن عجلت میں نشانہ خطا ہو گیا۔ تب تک وہ پانی کے اندر جا چکا تھا۔ ہم نے بھاگ کر 2-3 فائر اور بھی کیے، مگر وہ ایسا غائب ہوا کہ کافی دیر ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہ آیا، لہٰذا ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم نے اس کے ٹھکانے پر پھر چھاپا مارا، لیکن وہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ 2 دن لگاتار ہم اس کے ٹھکانے پر جاتے رہے، مگر وہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر چند دنوں تک کوئی دل خراش واقعہ بھی پیش نہ آیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مگر چھٹے روز ہمیں خبر موصول ہوئی کہ اس نے اسی گاؤں کی ایک بکری کو اپنا لقمہ بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ چند دن غائب رہا، لیکن جب بھوک نے تنگ کیا تو پھر سے خونی وارداتوں پر اتر آیا۔ ہم اسی دن ایک بار پھر پوری تیاری کے ساتھ اس طرف چل دیے۔ فضل بھی ہمارے ساتھ تھا۔
नूर दीन की सलाह पर हम पहले मगरमच्छ के ठिकाने पर पहुंचे, मगर वहां वो ना मिला और ना ही इसकी शिकार की हुई बकरी की बाकियात नजर आए। अलबत्ता इसके पंजों के बड़े बड़े ताज़ा निशान ज़रूर वहां मौजूद थे। मगरमच्छ की फितरत होती है कि वो अपने शिकार को पकड़कर फौरन पानी के तह में ले जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर उभर कर वापस पानी में ले जाता है। वो ये अमल कई बार करता है, यहाँ तक कि शिकार की रूह उसके वजूद का साथ छोड़ देती है। छोटे मोटे जानवरों को तो वो फौरन निगल जाता है, लेकिन बड़े जानवर मसलन गाय, भैंस, बारहसिंघा वगैरह के मामले में वो ऐसा नहीं करता। उनको मारने के बाद लाश को किसी गड्ढे या घास फूस में छुपा देता है और जब गोश्त खूब गल सड़ जाता है तब वहां से घसीट कर ठंडी रेत पर ले आता है और बड़े माहराना अंदाज में टुकड़े टुकड़े करके जितना खाना मकसूद हो खाकर बाकी टुकड़े वहीं छुपा देता है। बाज़ औक़ात वो बड़े जानवर या आदमी की लाश को टुकड़े करने के लिए मजबूत दरख्तों के तनों से टकराता है ताकि इसकी हड्डियां टूट जाएं। चुनाचे मेरा ख्याल यही था कि अगर वो बकरी को ले गया है तो ज़रूर उसने उसकी लाश किसी दरख्त से टकराई होगी, मगर हमें ऐसा कोई सुराग ना मिल सका। इसके बाद भी हमने कई बार उसे तलाश किया और इसके धोखे में 2 और मगरमच्छ मार दिए जो दरियाए तवी से नदी की तरफ आ निकले थे, मगर वो हमें ना मिल सका। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। लोगों में इसका खौफ पहले से ज़्यादा फैला हुआ था और कुछ लोगों ने इस बारे में अंग्रेज़ सरकार को भी बता दिया था। इस सिलसिले में 2-3 शिकारी भी आए, मगर नाकाम चले गए। हम भी अब तक नाकाम ही रहे थे, ताहम हमने अपने तईं उसकी तलाश जारी रखी। एक दिन हमें खबर मिली कि आदमखोर मगरमच्छ ने एक गवाले को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि वो गौला साथ वाले गांव से एक नई भैंस खरीद कर ला रहा था। जब वो नदी के पास से गुजरा तो भैंस को पानी देखकर प्यास महसूस हो गई और वो गवाले के खींचने के बावजूद पानी में जा उतरी। पानी पीने के दौरान उसे मगरमच्छ का एहसास हुआ तो वो फौरन किनारे के साथ गीली रेत पर आ खड़ी हुई और खौफजदा होकर पानी की तरफ देखने लगी। इसका मालिक इसके गले की रस्सी पकड़े साथ ही खड़ा था कि अचानक ही वो रस्सी छुड़ाकर नदी से बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। उसने मगरमच्छ को देख लिया था, मगर ग्वाला जो अभी तक मगरमच्छ को देख नहीं पाया था, इस शशुपंज में खड़ा रह गया कि भैंस पर आखिर क्या आफत नाजल हो गई। उसी असना में मगरमच्छ ने इस पर हमला कर दिया और इसकी टांग अपने जबड़े में दबाकर घसीटता हुआ पानी में ले गया। ग्वाला निडर, बहादुर और जवान आदमी था। उसने पूरी कुव्वत से अपनी टांग खींची और किनारे की तरफ भागा, लेकिन मगरमच्छ ने उसे फिर से जा पकड़ा। तब उसने हाथ में पकड़ी लाठी से मगरमच्छ की आंख पर वार किया, जो कारी साबित हुआ और इसकी आंख से खून निकलना शुरू हो गया। तकलीफ से बेताब होकर उसने फौरन गवाले की टांग छोड़ दी और पानी को खून आलूद करता हुआ नदी की गहराई में गायब हो गया। अगरचे ग्वाला सख्त जख्मी हो चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी और पूरी कुव्वत यकजा करके नदी से बाहर आ गया। फिर खुद को घसीटता हुआ गांव के करीब पहुंचा तो लोगों की नज़र इस पर पड़ी। वो उसे चारपाई पर डालकर इसके घर ले गए। ये किस्सा सुनकर मैंने फौरन नूर दीन को साथ लिया और मज़कूरा गवाले के घर जा पहुंचा। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो चुका था। उसकी बीवी और बच्चा गम से निढाल मोहल्ले की औरतों के साथ एक तरफ बैठे हुए थे। मैंने नए सिरे से इसको मरहम लगाई और उसकी बीवी को तसल्ली दी। उसकी हालत देखकर यकीन माने मेरे दिल में आदमखोर मगरमच्छ के खिलाफ नफरत और गुस्से के जज्बात पैदा होने लगे। इससे पहले उसने जितने लोगों को शिकार बनाया था वो मेरे सामने नहीं था, मगर गवाले को मैं अपनी आंखों से देखा। तो मैंने नूर दीन से कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमारे हाथ से नहीं बचना चाहिए। अगले दिन एक बार फिर हम तीनों उसकी तलाश में सरगर्दा हो गए।
हमने पूरी नदी का अच्छी तरह मुआयना किया और जान जोखों में डालकर उन तमाम खतरनाक जगहों और गड्ढों में भी उतरे जहां उसके चूकने के इम्कानात थे, मगर खुदा जाने वो जालिम शैतान कहाँ गायब था। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता कि वो कोई भूत है। वो बड़ा मकार और शातिर था, हमें देखकर कहीं गायब हो जाता। सारा दिन हम उसे दीवाना वार ढूंढते रहते, और जब सूरज की किरणें दरख्तों की हरी चोटियों को छूकर रुखसत हो जाती तो थके मांदे घर को लौट आते। उस दिन भी हम अपनी धुन में निकले और दोपहर तक उसे ढूंढते रहे। गर्मी के दिन थे, दोपहर के वक्त वहां सूरज की शिद्दत और तपिश ना काबिल बर्दाश्त होने लगती। हम एक दरख्त की छांव में बैठ गए। फजल पानी पीने के साथ साथ मगरमच्छ को भी सोच रहा था, जबकि मेरी नजरें नदी के पानी की तरफ थीं, जो धूप में चांदी की चमकदार लकीर की मानिंद नजर आ रहा था। यकायक हमने नदी के अंदर एक कश्ती देखी जो हमारी तरफ आ रही थी, और इसका वाहिद सवार हमें आवाजें देकर अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। हम हैरत से उसकी तरफ देखने लगे कि भला ये कौन हो सकता है। फिर मुझे याद आया, ये तो माही गीर है, और इसे मैंने कहा था कि अगर कहीं मगरमच्छ नजर आए तो हमें फौरन इत्तिला करे। मैं उठकर उसे आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जह करने लगा। कुछ देर बाद वो हमारे करीब आ गया। इसने कश्ती किनारे पर खड़ी की और कूदकर हमारे पास आ गया। इसका सांस फूला हुआ और चेहरा खौफ से तांबे की तरह सुर्ख हो रहा था। हमने उसे पानी पिलाया और पूछा, मुआमला किया है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब वो एक सांस में बोला, साहब मैं अभी अभी इस आदमखोर मगरमच्छ को देखकर आ रहा हूँ। जहाँ इस नदी और दरियाए तवी का संगम है, वहाँ किनारे पर जो खुश्क जगह है वो वहीं लेटा हुआ है। इसकी आंख पर जख्म भी है जिससे हल्का हल्का खून रिस रहा है। उसका मुंह पानी के अंदर और धड़ खुश्की पर था और अपना जबड़ा खोले जोर जोर से सांस ले रहा था। इसे देखकर डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई, और मैं फौरन आपको बताने आ गया। हमारे लिए ये इत्तिला ना सिर्फ अजीब बल्कि हैरान कून भी थी। मजीद वक्त ज़ाया करना फजूल था। हम तीनों उठ खड़े हुए। अब मुश्किल ये दरपेश थी कि मगरमच्छ को हलाक किस तरह किया जाए। उसके करीब कश्ती ले जाना हमाकत थी, क्योंकि कश्ती की आहट पाकर वो नदी में उतरकर गायब हो जाता, और दूसरे किनारे पर खड़े होकर सही निशाना लेना दुश्वार था। मैंने माही गीर से कहा कि वो हमें इससे कुछ फासले पर छोड़ आए। इससे आगे हम पैदल ही चले जाएंगे। हम तीनों कश्ती में सवार हो गए, और मला हमें इससे कुछ फासले पर ले आया। हम कश्ती से उतरकर किनारे पर उतरे और माही गीर से इंतज़ार करने का कहकर किनारे किनारे आगे चलने लगे। यहाँ तक कि हम उसके इस कदर नज़दीक पहुँच गए कि वो शैतान मगरमच्छ हमें वाज़ेह दिखाई देने लगा। वो बेहिस व हरकत अपना मुंह पानी में डाले पड़ा हुआ था। हम इससे करीबन 40-50 गज के फासले पर थे। मैंने फजल और नूर दीन को खामोश रहने का इशारा किया और अपनी बंदूक सीधी करके उसको निशाने पर ले लिया। अचानक ही मगरमच्छ के वजूद में हरकत हुई और उसने अपना जबड़ा पानी से बाहर निकाला। हम फौरन नीचे लेट गए और खुद को झाड़ियों में छुपा लिया। मगरमच्छ ने अपना मुंह उठाकर इधर उधर देखा। शायद उसे किसी खटके का एहसास हो चुका था। इधर हमारी धड़कनें ये सोचकर मुंतशिर हो रही थीं कि अगर इस मर्तबा भी वो बचकर निकल गया तो पता नहीं मजीद कितने दिनों तक उसकी तलाश में खुआर होना पड़ेगा। इधर नूर दीन ने मेरे कान में सरगोशी की, वक्त बर्बाद मत करो, उसे उड़ा दो वरना मैं उसे उड़ा दूंगा। मैंने मगरमच्छ को निशाने पर ले लिया और जो इसने अपना सर ऊपर उठाया हुआ था मैंने उस पर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ से खामोश फिजा गूंज उठी और मगरमच्छ सर के बल गिरा, मगर फौरन ही सीधा हुआ और पानी में कूद गया। मैंने बोला वो तो पानी में कूद गया है। नूर दीन परेशानी से बोला, कोई बात नहीं, अब हम उसे पकड़ लेंगे।
तुम कश्ती वाले को आवाज दो कि फौरन इधर कश्ती ले आए। नूरदीन ने माहीगीर को आवाज देके कश्ती लाने का इशारा किया। कश्ती में बैठकर हम तीनों इस जगह पहुंचे जहां मगरमच्छ को गोली लगी थी। उस जगह पानी भी सुर्ख हो चुका था जहां से वो जख्मी होकर भागा था। उसको मारने के जुनून से सूरज की किरणें हमारे अंदर आग लगा रही थी। मेरी बंदूक की गोली का निशाना बनने के बाद यकीनन वो ज्यादा देर तक पानी में रहने के काबिल ना रहा था। उसे सांस लेने के लिए बाहर आना था और हम कश्ती में सवार होकर उसके ताक़ुब में थे। पानी के बुलबुले और हल्के गुलाबी रंग की एक लकीर इसके फरार होने की साफ निशानदही कर रही थी। हमारे हाथों में बंदूकें तैयार थीं और निगाहें पानी के अंदर इसकी खोज कर रही थीं। मगर आफरीन है इस मूजी पर, वो पानी के अंदर ही अंदर तैरता रहा। हम भी जिनकी तरह इसके ताक़ुब में रहे। आखिर मजबूर होकर वो सतह पर आ गया और जैसे ही इसका जबड़ा पानी के ऊपर उभरा तो नूरदीन की बंदूक से एक आग निकली और वो पानी में नाचने लगा। फिर संभल कर उसी किनारे की तरफ भागा जहां मैंने इसे गोली दागी थी। कमाल है, 2 गोलियां खाने के बाद भी ये जिंदा है। नूरदीन हैरत से बोला, ये तब तक नहीं मरेगा जब तक मेरी गोली इसका पीठ नहीं फाड़ देती। ये कहकर फजल ने अपनी बंदूक से उसकी तरफ निशाना बांध लिया। कश्ती तेजी से उस तरफ बढ़ रही थी। खुश्की पर पहुंचकर मगरमच्छ ने करीबी झाड़ियों की तरफ रुख किया। वो पंजों के बल भाग रहा था। उसके जबड़े से खून निकलकर जमीन को रंगीन कर रहा था। हमें नज़दीक पाकर तकलीफ के आलम में उसने जबड़ा खोलकर जोर से भयानक चीख मारी, जिसे सुनकर जंगल में मौजूद बंदरों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। फजल ने एक बार फिर इत्मीनान से उसका निशाना बांधा और फायर कर दिया। मगरमच्छ एक तरफ गिर पड़ा। इसकी दुम तेजी से गर्दिश कर रही थी जिसके बाइस घास और खुश्क शाखें हवा में उड़ने लगीं। फजल मजीद फायर करना चाहता था मगर मैंने उसे रोक दिया। मगरमच्छ 2-3 कलाबाजियां खाने के बाद वहीं ठंडा हो गया। हमने करीब जाकर इसका मुआयना किया। मेरी चलाई हुई पहली गोली इसके हलक में पेवस्त थी। नूरदीन की गोली इसकी पेशानी में और फजल की चलाई हुई गोली इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी। हमने फैसला किया कि मगरमच्छ को गांव में ले चलते हैं ताकि लोग उसे अपनी आंखों से देख लें। यूं मुर्दा मगरमच्छ को कश्ती में डालकर हम गांव ले आए। लोग डर के मारे उसके करीब नहीं आ रहे थे, दूर से देखकर ही निकल जाते। ताहम वो सब इस इफरीत से निजात पाने पर बहुत खुश थे। गांव वालों ने हमें 2 भैंसें बतौर इनाम में दीं और हम वापस अपने घर आ गए। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।